Hello dear students, we are studying work energy and power, and in the previous video we had studied about energy, that is kinetic energy and potential energy, how to derive its formula. We had studied about work energy theorem also, and we had studied a very important law that is called conservation of mechanical energy, law of conservation of mechanical energy. Today we are going to see the application of law of conservation of mechanical energy with the help of vertical circle. So let's see what is the application behind this. See beta, we have seen several times a person ties a stone at one end of the thread and tries to make a vertical circle from that stone. So here also we are taking the same case. Suppose here I am having a bob connected to this end, and the length of this string is L. So what I need to find is I need to find the tension in the string at any point or at any instant, and we need to find the velocity at each and every instant. So how we can find tension and velocity at any instant. This is our main target. So this target can be achieved with the help of law of conservation of uh, mechanical energy. So first of all, to find the tension at any point, what I had assumed is, suppose the mass of this bob is m, and at certain time, suppose it makes an angle theta over here. So the bob will reach to this location. If the bob will reach to this location, so what will be the height achieved by this ball is, this will be, suppose this height is h, so this length will be l minus h. ऐसी कंडीशन होगी, और अगर ये l माइनस एच हो गया, तो अब मुझे टेंशन निकालनी है इस लोकेशन पे। तो ऑब्वियस सी बात है, इस बॉब का मास हमारे पास m है, तो नीचे की डायरेक्शन में क्या लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg, राइट। इधर क्या लग रही होगी बेटा, इधर हमारी टेंशन लगा करती है, स्ट्रिंग है और टाइड है और उसको हम रोटेट करा रहे हैं। ड्यू टू रोटेशन देयर इज अ सर्कुलर मोशन, एंड ड्यू टू इट्स रोटेशन what we'll have a centripetal force over here. So what will be the direction of centripetal force over here? आउटवर्ड डायरेक्शन में आपकी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv square upon l, because l is the length which we had assumed of the string, and it is basically the radius of your vertical circle. So if I'll break the mg into two components, what I'll find is, if this angle is theta, that means this angle is also theta. And if this angle is theta, that means mg cos theta will act at this direction, and mg sin theta will act in this direction. So the tension in the string will be T is equal to, if I'll balance it, the force which is acting in the towards the center is T, and away from the center it is mg cos theta plus mv square upon L. So this will be the tension at any of the location. किसी भी location पर अगर मुझे tension निकालनी है, so what I have to do is I have to place the value of theta over here, and whatever be the velocity at initially, यहाँ पर हमने इसको कुछ velocity provide की होगी, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ velocity आई होगी, वो velocity हमें यहाँ पर place कर देनी है. बाकी m और g ये सारी चीजें हमें दी गई होंगी, तो टेंशन जो आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l. अब यहाँ पर अगर मैं थीटा फाइंड करने की कोशिश करूं, तो थीटा जो मुझे मिलेगा, तो अगर मैं cos थीटा निकालूंगा यहाँ से, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू, this will be base upon hypotenuse will be L only, so this will be L minus H upon L.
This will be the relation of cos theta, right? So if I'll replace the cos theta with this relation, so tension will be equal to mg into L minus h upon L plus mv square upon L. Suppose here I had provided the initial velocity as u and I need to find the velocity v over here. So what is the vertical displacement which has occurred in this body is h. So if I'll use third equation of motion, what I'll get? V square is equal to u square plus 2gh, ऐसा ही रिलेशन मिलेगा. तो यहाँ पर g तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो g को आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिव g. h आपका पॉजिटिव है बिकॉज ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो h को आपको प्लस ऑफ h ही लेना पड़ेगा. तो v जो आएगा यहाँ से दैट विल बी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh मिलेगा आपको. ये आपको किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. वेलोसिटी एट any instant. This is the expression for tension at any instant, right? So if I'll use this relation, this is suppose relation number 1, this is suppose relation number 2, this is relation number 3, and this is relation number 4. If I'll use fourth relation in 3, so what I'll get using equation 4 in 3, what I'll get over here is, तो सिंपल सी बात, मुझे यहाँ पर जो टेंशन मिल रही है T इज बेसिकली इक्वल टू mg L माइनस एच अपॉन L प्लस mv स्क्वायर अपॉन L. यही हमारा रिलेशन था. v स्क्वायर की जगह पर मुझे क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पर? L माइनस एच अपॉन L प्लस v स्क्वायर की जगह पर मैं अगर वैल्यू रख दूं m बाई L, और v स्क्वायर है और यहाँ पर हमने v को हमने रूट में लिखा है, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा? v स्क्वायर विल बी u स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh. सो t विल बी इक्वल टू, इस रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो m बाई एल तो कॉमन आ जाएगा. अंदर जो आपको चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी? gl माइनस ऑफ gh प्लस ऑफ u स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh. ऐसा ही रिलेशन देखने को मिलेगा. सो t will be equal to m by L gl, सही है, प्लस u स्क्वायर माइनस 3gh. सो दिस विल बी द टेंशन इन टर्म्स ऑफ हाइट, कि जो भी बॉडी है वो बॉडी कितनी हाइट तक पहुंचेगी, तो उसके लिए हमें ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा. अब मान लीजिए कि मुझे टेंशन निकालनी है लोअर एंड पर. लोअर एंड मतलब दिस इज माय लोअर एंड, दिस इज माय लोअर एंड, राइट? या लोएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं इसको. दिस इज द लोएस्ट पॉइंट एंड दिस विल बी द हाईएस्ट पॉइंट. यहां पर अगर बॉडी पहुंचेगी तो ये हाईएस्ट पॉइंट होगा. तो लोएस्ट पॉइंट पर अगर मुझे टेंशन निकालनी है, तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी? So for lowest point, the value of h will become 0 because there is no height over here. So to find tension at lowest point, h will be equal to 0. अगर h की वैल्यू 0 हो गई तो टेंशन एट लोअर एंड दिस विल बी इक्वल टू m बाई एल एंड दिस विल बी gl प्लस ऑफ u स्क्वायर. इतना ही रिलेशन बचेगा, यानी कि tl को और थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो m बाई एल u स्क्वायर प्लस gl, ऐसे ही रिलेशन देखने को मिलेगा आपको.
अच्छा, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट अगर मुझसे कोई पूछेगा तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, at highest point will be h will be equal to 2l हो जाएगी हाइट, है क्या नहीं? देखो यहाँ पर h क्या है, ये हमारा h है, तो यहाँ पर h हमारा 0 है, तो यहाँ से बॉडी यहाँ पहुंची, यानी कि 2l डिस्टेंस कवर किया उसने। जब 2l डिस्टेंस कवर किया है तो h की जगह पर मुझे रखना पड़ेगा 2l, और अगर मैं 2l रखूंगा तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट दिस विल बी m/l एंड दिस इज gl प्लस यू स्क्वायर माइनस ऑफ 3g इंटू 2l, ऐसा ही रिलेशन देखने को मिलेगा मुझे। तो टी एच विल बी इक्वल टू m/l यू स्क्वायर माइनस 5gl, यही रिलेशन देखने को मिलेगा। तो ये मुझे लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन मिल गई और ये टेंशन मुझे हाईएस्ट पॉइंट पर मिल गई, राइट। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, किस किस का, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट एंड टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट के बीच में डिफरेंस अगर मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं, सो डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है, लोएस्ट पॉइंट की टेंशन जो होगी वो ज़्यादा होगी और हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन कम होगी। ये आपको रिलेशन से सीधा सीधा दिख रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टी एल में से मैं अगर टी एच को माइनस कर दूं तो टी एल जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे m/l यू स्क्वायर और प्लस जी एल माइनस m/l यू स्क्वायर माइनस 5gl, ऐसे रिलेशन देखने को मिल रहा है। दोनों में आपको एक तरफ आपको प्लस मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको माइनस मिल रहा है, राइट, ऐसा ही, बिल्कुल सही। सो दिस विल बी टी एल माइनस ऑफ टी एच, दिस विल बी इक्वल टू m/l, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर देखो यू स्क्वायर प्लस जी एल माइनस यू स्क्वायर प्लस 5gl, ऐसा ही रिलेशन देखने को मिलेगा। यू स्क्वायर एंड यू स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट, सो टी एल माइनस टी एच दिस विल बी इक्वल टू m/l इंटू ये हो जाएगा 6gl, तो 6 एल से एल कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 6mg। कितनी मिलेगी हमें टेंशन, 6mg, मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमें 6mg मिलेगा। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा दैट इज बेसिकली 6mg, का मतलब ये हो गया तो 6 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, राइट, ऐसी कंडीशन मिलेगी। अब यहां पर एक सिचुएशन आती है कि हम किसी बॉडी को इसके लोअर एंड पर कितनी वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करें कि ये सर्कल को कंप्लीट कर ले, राइट। हाईएस्ट वेलोसिटी तो कुछ भी हो सकती है, आप 100 किलोमीटर से अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर से फेंक देंगे तब भी वो सर्कल बनाएगा, डिपेंडिंग ऑन दी टेंशन विच ए स्ट्रिंग कैन हैंडल। तो सिंपल सी बात, मुझे अब यहाँ पर कंडीशन निकालनी है कि मिनिमम कितनी इसको वेलोसिटी दी जाए, किसको, जो भी आपका ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप मिनिमम कितनी वेलोसिटी देंगे कि ये सर्कल को कंप्लीट कर ले, ठीक। तो अब हम बात करेंगे मिनिमम वेलोसिटी की। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन at the lowest point to loop the loop, to या for looping the loop, मतलब उस लूप को कंप्लीट करने के लिए आपको कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी होगी। तो अगर यहाँ पर हम मिनिमम वेलोसिटी की बात करें बेटा, तो जो भी हमारे पास सर्कल है, उस सर्कल को अगर आप ध्यान से देखें और जब भी आप मिनिमम वेलोसिटी देंगे तो मिनिमम वेलोसिटी के केस में आपको एक सिचुएशन मिलेगी, देखिएगा।
जब भी आप यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी दे रहे हैं, सपोज यहाँ पर ये पॉइंट आपका ए है और आपने यहाँ पर वी ए जो है ये आपने वेलोसिटी प्रोवाइड की, अगर आप यहाँ पर इस वी ए को मिनिमम बोल रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये बॉडी पहुंचेगी तो यहाँ पर जो टेंशन होगी वो टेंशन इसको जीरो मिलती है। हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी टेंशन कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन आपको जीरो मिलेगी, मतलब वहां पर आपको किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं मिलेगी। मतलब आपने बहुत ही कम, कभी आप देखिएगा एक पानी की बकेट लीजिएगा, बहुत ही छोटी बकेट लीजिएगा और उससे एक वर्टिकल सर्कल अपने हाथ से बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब आप उसको मिनिमम वेलोसिटी देंगे तो आपके हाथ में आपको किसी भी तरीके की कोई टेंशन महसूस नहीं होगी, यानी कि उस केस में आपको टी एट हाईएस्ट पॉइंट आपको जीरो मिलेगा। जब टी एट हाईएस्ट पॉइंट जीरो है तो अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो टेंशन का हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था जब हम लोगों ने यहाँ पर ये थीटा एंगल अज्यूम किया था, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन निकाला था एंड दैट एक्सप्रेशन फॉर टी वाज एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, ऐसा ही रिलेशन देखा था हम लोगों ने। तो मुझे टेंशन कहाँ निकालनी है? अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं तो टी एच होना चाहिए, तो टी एच विल बी इक्वल टू एम जी और कॉस थीटा एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि कॉस मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसको 180 डिग्री लिखना पड़ेगा, प्लस एम, इस पॉइंट पर हम टेंशन निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पर हमने टेंशन इसको जीरो बोल दिया है, यानी कि टेंशन एट पॉइंट बी नाम दे देता हूं मैं इसको। टेंशन एट पॉइंट बी कितनी है हमारी? जीरो है। जब मिनिमम वेलोसिटी की बात होगी उस केस में हमारी टेंशन कितनी होगी? जीरो। तो दिस विल बी एम वी स्क्वायर, इसको एम वी नाम दे दो, एम वी वी बी स्क्वायर अपॉन एल। तो ये टेंशन तो जीरो है। अगर ये जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है दिस विल बी माइनस ऑफ एम जी प्लस एम वी बी स्क्वायर बाई एल एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। सो दिस विल बी एम वी बी स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू एम जी, आपको रिलेशन देखने को मिलेगा तो एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो m से m जब कैंसिल हो जाएगा तो vb की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी रूट जी एल, आपको वेलोसिटी देखने को मिलेगी एट पॉइंट बी। तो मतलब आपने यहाँ पर क्या वेलोसिटी दी है, मिनिमम वेलोसिटी, वो हम अभी फाइंड नहीं कर पाए। हमने अभी तक क्या फाइंड किया कि जब यहाँ से मिनिमम वेलोसिटी देंगे तो बी पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो बी वी पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम वेलोसिटी आपको मिलेगी दैट विल बी रूट जी एल के बराबर मिलेगी। ठीक, अब हम फाइंड करेंगे ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो बेटा यहाँ पर जो भी मोशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से आपने एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की और वो काइनेटिक एनर्जी जाकर के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको वी भी मिलेगा, एक हाइट भी इसने गेन कर ली है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो ए पर है वो टोटल एनर्जी आपके बी पॉइंट के बराबर होनी चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐसे लिख दूं कि टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, तो ये गलत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, मैं ऐसा लिख पाऊंगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए विल बी हाफ एम वी ए स्क्वायर, ऐसे ही देखने को मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी इस एंड पर जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर एम जी इंटू टू एल, हाइट अचीव कर ली है बेटा उसने हाईएस्ट पॉइंट पर, तो वो 2l हो जाएगा। वीबी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वीबी की वैल्यू मिनिमम वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो रूट जी एल होनी चाहिए। तो अगर ये रूट जी एल होगी तो हाफ एम, देखो एम से एम हर जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रूट जी एल आई है शायद वेलोसिटी, यस। तो यहाँ पर मैंने जी एल लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है, प्लस टू जी एल, ऐसा ही रिलेशन देखने को मिलेगा, यानी कि वी ए स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू दिस विल बी 5/2 जी एल, ऐसा ही देखने को मिलेगा। देखो 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो वी ए इज इक्वल टू कितना मिला हमें, रूट अंडर 5 GL देखने को मिला। ये आ गई हमारी मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइडेड
टू लूप द लूप। बात आई समझ में? तो यहीं पर अगर मुझसे ए पॉइंट पर टेंशन पूछ ले कि आपने जो भी वेलोसिटी प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंग टेंशन क्या हो जाएगी, तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, अगर मैं टेंशन की बात करूं तो टेंशन का एक्सप्रेशन क्या होता है भैया, तो टी ए निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी ए स्क्वायर बाई एल, ऐसे रिलेशन देखने को मिलेगा। थीटा जब बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर होगा तो थीटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, लोएस्ट पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और वी ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, रूट अंडर 5 GL, तो यहाँ से आपको टी ए जो मिलेगा दैट विल बी एम जी कॉस 0 प्लस एम वी ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 GL का स्क्वायर अपॉन एल, यस 5 GL सॉरी, सो टी ए विल बी इक्वल टू एम जी, एल से एल यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, प्लस ऑफ 5 mg। सो टेंशन एट ए जब आपको मिलेगी वो 6 mg मिल जाएगी, मतलब लोएस्ट पॉइंट पर आपको टेंशन जब आप मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो आपकी टेंशन कितनी होगी, 6 mg हो जाएगी। यहीं पर एक और केस डील करने की कोशिश करते हैं बेटा। मान लीजिए किसी ने बोला कि ये जब वर्टिकल हो जाए बिल्कुल, मतलब इनिशियल पोजीशन से वर्टिकल डायरेक्शन बनाए, मतलब 90 डिग्री का जब एंगल बनाए, तो यहाँ पर मुझे वी सी निकाल कर दीजिए और मुझे टेंशन भी बताइए। तो इस केस में भी आप कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में आप अपनी एनर्जीज को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे टेंशन एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है, टू फाइंड टेंशन एंड वेलोसिटी एट सी, तो मैंने देखो क्या काम किया, टोटल एनर्जी एट ए ये जो होनी चाहिए टोटल एनर्जी एट सी के बराबर होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें मुझे बराबर मिलेंगी तो सबसे पहले तो मैं टेंशन निकाल लूं, तो टी सी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल, ऐसे ही लिखेंगे। तो कॉस थीटा तो मुझे कितना मिल गया बेटा, कॉस थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो सी पॉइंट है वो बिल्कुल आपके इनिशियल पोजीशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो वी सी स्क्वायर बाई एल, तो टी सी विल बी इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई एल। तो मुझे किसी भी तरीके से वी सी निकाल लेना है, तो यही वी सी निकालनी है और मुझे टेंशन निकालनी है। तो टी ए जो है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, दिस मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी एट ए का मतलब हाफ एम वी ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हमें ये काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ एम वी सी सॉरी वी सी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर एम जी एल हो जाएगी, क्योंकि एल इज द हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। तो यहाँ पर देखो m से m हर जगह से क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल हो रहा है, और वी ए की वैल्यू हमें बहुत अच्छे से पता है जीएल होती है, डिराइव की थी हम लोगों ने, हाफ वी सी स्क्वायर प्लस जी एल। तो यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन मिल रही है दैट सिचुएशन इज हाफ वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं अगर इधर लेकर जाऊंगा तो मुझे क्या रिलेशन देखने को मिलेगा, देखिएगा वी ए की वैल्यू हमारी कितनी थी, वी ए इज रूट 5 GL सॉरी, वी ए वॉज रूट 5 GL, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, सो दिस विल बी 5/2 -1 इंटू GL, so this will be equal to vc square is equal to 3 GL। तो vc की वैल्यू कितनी आ गई, रूट अंडर 3 GL आपको वेलोसिटी मिलेगी। अब इसी vc की वैल्यू को आप यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, तो ये आपको tc मिल जाएगा, यानी कि m vc की जगह पर आपने क्या लिख दिया 3 GL अपॉन l, 3 l से l कैंसिल, तो tc की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3 mg। ये आपकी टेंशन हो जाएगी सी पॉइंट पर जब आप मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट प्रोवाइड करेंगे। सो आई होप ये आपको बातें समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट विल बी एबल टू फाइंड द टेंशन एंड वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल।
Next topic is power. It is a very small topic, the things which you had already studied in class 9th. What is power? Power is defined as the rate of doing work. इसी को हम पावर बोलते थे। तो अभी तक हमने जब कभी भी फॉर्मूला पढ़ा पावर का तो W/T पढ़ा है, और अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकालनी है, तो dW/dt हमारा पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आप इस पावर के फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो P इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, F.S लिख सकता हूँ डिवाइड बाई टी, और S/T मुझे क्या देखने को मिलता है, S/T होता है बेटा वेलोसिटी, यानी कि F.V वेक्टर। तो यहाँ से ये डॉट प्रोडक्ट आ गया, तो पावर जो है वो कैसी क्वांटिटी होगी आपकी, स्केलर क्वांटिटी होगी। इसकी जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है, वो एसआई यूनिट आपको मिलती है जूल पर सेकंड, और इसी को हम क्या बोल दिया करते हैं, वॉट बोल दिया करते हैं। ठीक, तो ये वॉट इज बेसिकली द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जिसके नाम के ऊपर हमने क्या रखी हुई है, हमने इसकी यूनिट को अज्यूम किया है। तो ये जो आपकी सिचुएशन है, इस सिचुएशन के बाद अगर हम देखें तो हमें पावर में और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पावर में हमें सिर्फ इतनी ही बातें हमें ध्यान रखनी है कि पावर क्या होती है। तो इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर आपको वर्क निकालना आता है तो वर्क को अगर आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या मिल जाएगी, आपको पावर मिल जाएगी। तो आज के लिए इतनी कहानी बहुत है। एक कॉमर्शियल यूनिट भी होती है पावर की, 1 kWh, और जूल में क्या रिलेशन होता है, कॉमर्शियल यूनिट पावर की नहीं, कॉमर्शियल यूनिट आपकी एनर्जी की होती है, 1 kWh। इसको ऐसा नहीं सोचना है कि ये पावर है, दिस इज बेसिकली कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एंड दिस 1 kWh जो होता है बेटा, दिस इज बेसिकली इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो इतनी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो सिंपल सी बात ये कि अगर मैं वर्क निकाल सकता हूँ तो मैं एनर्जी बता सकता हूँ, अगर मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ, एनर्जी और वर्क निकाल सकता हूँ, तो मैं पावर भी निकाल सकता हूँ। क्योंकि पावर को आपको सीधे सीधे क्या करना है, आपको टाइम से डिवाइड, वर्क को आपको क्या कर देना है, सीधे सीधे टाइम से डिवाइड कर देना है, तो आपको क्या मिल जानी है, आपको पावर मिल जानी है। सो आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।